Please start recording the session. This meeting is being recorded. Thank you. Host, please. Share screen. एक भारत श्रेष्ठ भारत। The trains of India, they are not just trains running on tracks. They are the spirit of Akhand Bharat. In each of them travels an India of Sardar Patel's dreams, bringing unity and diversity alive. Some journey to the serene beauty of Kashmir through Vaishno Devi. Some connect us to southern tip Kanyakumari. Take a trip to India's exciting desert through Ajmer Sharif. Another through the mystique of the picturesque Northeast. Every station is a picture of a mini India. Sharing food, or sharing a laugh and a song. People come closer. And playing the iconic card games that This meeting is being recorded. Correct, Radhika Agnihotri. You can start your presentation. नमस्कार सभी आदरणीय एएनओ केयर टेकर्स और कैडेट्स का मैं एनसीसी पीएसआईटी की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चौथे दिवस में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। विविधता में एकता देश का प्रतीक, एक अनोखा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, वेशभूषा संग भाषा का मेल देश की है शान, सभ्यता संस्कृति हमारी देश की अलग है पहचान, जहां से आती सौंधी खुशबू उस भारत की मैं संतान, विविधता में एकता का प्रतीक हमारा प्यारा हिंदुस्तान। भारत त्योहारों की भूमि है और प्राचीन काल से ही उत्सवों की परंपरा रही है। विभिन्न धर्म और संस्कृतियों के कई धार्मिक त्योहार हैं, लेकिन राष्ट्रीय त्योहार हम सभी भारतीयों को यह स्मरण कराता है कि बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक हैं। हम सब भारतीय हैं,
हम सब भारतीय हैं। आपको राष्ट्रीय पर्व के बारे में और जानकारी देने के लिए मैं कैडेट देवांशी को बुलाना चाहती हूँ। धन्यवाद। Correct, Vanshi. You can start the presentation. Jai Hind everyone. I am Devanshi Pandey, a cadet of 55 UP Battalion, NCC PSIT Kanpur. My regimental number is UP 2021 SWA 461550. First of all, I would sincerely like to thank you all for being present here. Today's topic for my speech is National Festivals. By the end of my speech, you will get a brief intro about national festivals. A national festival is one that is celebrated everywhere within the nation. As a rule, it is recognized by the national government and is associated with an official holiday. As we know that India is a culturally diverse country, it is home to many religions, castes, and communities. People celebrate many different festivals in India according to their religion, culture, or communities. But when it comes to national festival days, it reminds us our love for our country. National festivals of India have a distinctive quality, which sets apart from other festivals. In India, we celebrate three national festivals, namely Republic Day, Independence Day, and Gandhi Jayanti. First, talk about Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th of January. When Republic Day is a public holiday in India, when the country marks and celebrates the date on which the Constitution of India came into effect on 26th of January 1950. The main Republic Day celebration is held in the national capital, New Delhi, at the Rajpath before the President of India. On this day, ceremonious parades take place at the Rajpath, which are performed as a tribute to India, its unity in diversity and rich cultural heritage. And there are also many events on that day. On the eve of Republic Day, the President of India contributes Padma Awards to the civilians of India every year. These are the second highest civilian awards in India after Bharat Ratna. These awards are given in three categories, with Padma Bhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri, in decreasing order of importance. Whereas the importance of Republic Day is that on this day, India became a sovereign republic with the right to form its own government. The grand formation of tableau, the breathtaking display of the folk dances of each state, celebrating the diversity of each state, the decoration and the display of weapon systems are integral part of India's Republic Day celebration. To witness the event, a foreign dignitary is also invited as chief guest every year. Gallantry and bravery awards are given away to armed forces celebrated at all the district and sub-divisional headquarters of the state. The governor takes the salute at the march past led by armed forces. At the state level, the governor unfurls the flag in the state capital and also gives a speech highlighting topical issues facing the respective state. The chief minister of the state hoists the flag in the district headquarters. And let's move to the national festival, second national festival which is celebrated in India, that is Independence Day. The same spirit of fervor accompanies the celebration of Independence Day on 15th of August every year. It is a joyous occasion of every Indian as it reminds us of the martyrs of the freedom struggle of India. In New Delhi, the national flag is hoisted by the Prime Minister and by chief ministers in respective states.
by other officials at different levels of political hierarchy. India's Prime Minister hoists national flag of India and gives a speech at the Red Fort in Old Delhi and highlight focus areas for future. While also reviewing the past achievements, the chief ministers of different states also unfurl the national flag in their respective states. In educational institutions such as schools and colleges, the day is commemorated with parades and cultural events for which preparations begin much in advance. On this day, government offices and buildings are illuminated and adorned with elegant decorations. National flags are hung at suitable places to show people's deep respect and commitment to the country. The tableaus have distinct themes that are as varied as the cultural and heritage legacy of the state to safety of women to renewable energy to Jallianwala Bagh. Schools participate in skits and dance programs. Overall, the activities strengthen the bond that ties citizens of the country. In what is an increasingly new trend, people paint their faces in colors of the national flag to make a visible show of their patriotism. The TV, radio, and other media show patriotic films, songs, and documentaries. People fly kites and spend the day with relatives and close friends. Besides these, let's move to our next national festival day, that is the Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti, celebrated on 2nd October, is also an important day. Though it is a national holiday, the celebration is not on the same scale as Republic Day and Independence Day. Yet it has caught the imagination of the entire nation, as this day carries a strong message of peace and harmony that resonates with every Indian. Mahatma Gandhi, who led by example, Gandhi's values and belief in satyagrah means truth and ahimsa means non-violence, have stood the test of time. On this day, by attending lectures about Gandhi and listening to devotional songs, every Indian strengthens his belief in the actuality of an equal society. And hence, I would like to end my speech. Thank you, everyone. युवा देश के कर्णधार होते हैं। देश और समाज का भविष्य उन्हीं पर निर्भर होता है। युवा पीढ़ी के समाज के प्रति दायित्व हैं जिनके बारे में आप आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले युवक युवती यानी आप और मैं स्वयं को सुधारें, स्वयं को शिक्षित करें, स्वयं को जिम्मेदार नागरिक व चरित्रवान बनाएं, तभी हम समाज की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। और इसी बात को आगे बताने के लिए मैं कैडेट मांडवी को बुलाती हूँ। Cadet Mandvi, you can Yes, open your sir. mic. Yes, sir. Sir, should I start? Yes. Hello. You can start. Just a second, sir. जय हिंद सर और जय हिंद मेरे सारे साथियों जो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं कैडेट मांडवी तिवारी यूपी बटालियन एनसीसी कानपुर से हूँ और मेरा रेजिमेंटल नंबर यूपी 2021 SWA 461 553 है। मैं यहाँ आप सबके समक्ष राष्ट्रीय एकता,
और राष्ट्रीय एकता की में युवाओं की महत्व के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय एकता उनके जाति, पंथ, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना लोगों के बीच बंधन और एकजुटता है। यह एक देश के समुदायों और समाज में के तहत एकता, भाईचारे और सामाजिक एकता की भावना है। राष्ट्रीय एकता विविधताओं के बावजूद देश को एकीकृत और मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। तो राष्ट्रीय एकीकरण का महत्व इस तथ्य से हो सकता है कि जो राष्ट्र एकीकृत रहता है, यह हमेशा विकास और समृद्धि की टेक पे आगे बढ़ेगा। युवक देश के करदार होते हैं। युवक देश और समाज का भविष्य ही नहीं, सब कुछ उन पर निर्भर करता है। परंतु आज हमारे देश की दशा अत्यंत शोचनीय है। समाज में एकता, जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना, कर्तव्य बोध, नैतिकता आदि की कमी है। शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। पॉलिटिकल कुचक एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। स्वार्थ भावना में वृद्धि, सेंस ऑफ ड्यूटी की कमी, कोरा दिखावा एवं अंधविश्वास आदि समाज को जकड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में युवाओं का दायित्व निश्चय बढ़ जाता है। युवा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमारा भविष्य होंगे। आज वे हमारे सहयोगी हो सकते हैं, कल भी नेता बनेंगे। युवा बहुत ऊर्जावान और उत्साही हैं। उनके पास सीखने और एनवायरनमेंट के अनुकूल होने की क्षमता है। इसी तरह वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीखने और उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य राष्ट्र के विकास में सभी नागरिकों को शामिल करने की प्रक्रिया से है। भविष्य के साथ साथ हमारे देश का वर्तमान भी इसके युवाओं के हाथ में है। इसलिए राष्ट्र की संरचना में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। युवा एक समय है जब रचनात्मक विचार और विचार मन में आते हैं, जो समुदाय और राष्ट्र को हम आकार देते हैं। राष्ट्र की नीतियों, योजनाओं और विकास कार्यों को युवाओं द्वारा सर्वोत्तम रूप से लागू किया जा सकता है। वे अधिक उत्साही और ऊर्जावान हैं और अगर उनकी क्षमता का सही दिशा में उपयोग किया जाता है तो वे तेजी से प्रगति की ओर जा सकते हैं। 3 प्रमुख तत्व हैं जो एक राष्ट्र की प्रगति में योगदान करते हैं। ये हैं शिक्षा, रोजगार। जब देश के युवाओं को शिक्षित किया जाता है और उनकी शिक्षा का सही उपयोग किया जाता है तो एक राष्ट्र एक स्थिर गति से विकसित होता है। हमारे देश में अधिकांश युवा अशिक्षित हैं। उनमें से ज्यादातर पढ़ा और लिखा नहीं जा सकता। इसलिए अशिक्षा हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हमारे देश की निश्चित आबादी हमारे देश की प्रगति में बाधा डालती है। हमारे देश की सरकार को खुले दिमाग से सोचने की, उन्हें सही शिक्षा प्रदान करने की विशेष प्रयास करना चाहिए। Today's youth aim tomorrow's over nation. युवा न कल आज के साथी हैं, बल्कि कल के नेता भी हैं। युवा सीखने, कार्य करने और प्राप्त करने के लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। वे सामाजिक अभिनेता हैं जो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन और सुधार लाने के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। समृद्धि, प्रगति, शांति और सुरक्षा के भविष्य के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। इसी तरह हमारे राष्ट्र के विकास के लिए युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हमारे राष्ट्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वित्त, स्वास्थ्य, नवाचार के क्षेत्र में प्रगति हासिल करना है तो युवाओं के प्रति उत्साही और ईमानदार भागीदारी की आवश्यकता है। प्रगति प्राप्त करने के लिए युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता, उत्साह, दृढ़ संकल्प और भावना किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपने माता-पिता, सभ्य समाज और सरकार द्वारा प्रोत्साहित और समर्थन करने की आवश्यकता है। इसी तरह हमारे राष्ट्र के विकास के लिए युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के बेरोजगार
और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार के अवसरों की कमी से सामाजिक अशांति हो सकती है। तीसरा, युवाओं को अपने जीवन की जिम्मेदारी संभालने के लिए सशक्त बनना जरूरी है। उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें सामुदायिक निर्णय लेने में शामिल करना महत्वपूर्ण है। युवाओं की ऊर्जा और बुद्धि को सही दिशा में प्रसारित करना और उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है, या जीवन में गलत रास्ते पर जा सकते हैं। युवाओं को हिंसक या अन्य बुरी गतिविधियों में शामिल होने से रोका जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास देश की सभी जनता को राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक एकता और देश की आर्थिक समृद्धि के निर्माण के लिए एक समग्र और लोक तरीके से करने की प्रक्रिया है। इसमें राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में सभी नागरिकों को शामिल किया गया है। चूंकि राष्ट्रीय एकीकरण किसी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदर्शित करता है, इसलिए अपने नागरिकों के बीच राष्ट्रीय अखंडता की भावना विकसित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए समाज में सभी वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर बनाना राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगा। इससे आर्थिक अखंडता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अन्य जातियों या धर्मों के लिए सम्मान भी राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण एक देश की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सामाजिकता को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय एकीकरण एक देश के लोगों को सद्भाव में मौजूद बनाता है। यह उनके बीच सामाजिक बंधन को मजबूत करने ही काम करता है। यह उनके बीच भाईचारा, शांति का प्रतीक है। राष्ट्र को एकजुट करता है। राष्ट्रीय एकीकरण विभिन्न जाति, पंथ या विचारों को लोगों को एकजुट करने के लिए सहायता है। एक देश के लिए राष्ट्रीय एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानव जाति के इतिहास में कई बार देखा जाता है कि एक राष्ट्र की अखंडता खतरे में पड़ गई। इसने भीतर से बड़ी चुनौतियों का सामना किया था और विदेशी हमलों का शिकार भी हुआ था। जय हिंद। Hello, sir. Yes, Manvi. Cadet Radhika, you can proceed. Hello, Cadet Radhika. वीरों Cadet की वीर गाथा, जब जब आया बुलावा मातृभूमि का, उसने हथियार उठाया था। देश की रक्षा करने हेतु सदैव अपना खून बहाया था। जो उठी तलवार और तीर कमान, तब फिर से बना मेरा भारत स्वतंत्र और महान। आज हम उन अचर्चित कर्मवीर व महान लोगों के बारे में जानेंगे, जिनके अनेक प्रयासों व सर्वोच्च बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। उन्हीं में से एक है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। तो इसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं कैडेट आर्यन को बुलाती हूँ। जय हिंद। मैं कैडेट आर्यन त्रिवेदी, 55 यूपी बीएन एनसीसी कानपुर, यूपी 221 एसडीए 461557 है। आज आपके समझ कुछ ऐसे सैनिकों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कभी हमको बताया ही नहीं, जिनकी कभी गाथाएं हमारे सामने गाई ही नहीं गई, लेकिन आजादी में उनका बहुत ही खास रोल रहा है। तो मेरा
जो मुझे जिनके बारे में बताना है उनका नाम है जानकी थदेवर। जानकी अतिनयपन, जिन्हें जानकी थदेवर के नाम से भी जाना जाता है, मलेशियाई भारतीय कांग्रेस की संस्थापक सदस्य थी और मलेशियाई स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल शुरुआती महिलाओं में से एक थी। जानकी मलाया में एक संपन्न तमिल परिवार की पली बड़ी और केवल 18 वर्ष की थी जब उसने भारतीय से बोस से अपील सुनी कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए, अपनी लड़ाई के लिए जो कुछ भी दे सकते हैं वे दें। उसने तुरंत अपनी सोने की बालियां उतारकर उन्हें दान कर दी। वह INI में शामिल होने के लिए दृढ़ थी। विशेष रूप से उनके पिता से पारिवारिक आपत्ति थी, लेकिन काफी समझाने के बाद आखिरकार पिता राजी हो गए। एक संपन्न परिवार में पड़ी बड़ी, वह शुरू में सेना के जीवन में कठोरता के अनुकूल नहीं हो सकी। उसके पहले दिन परोसे गए भोजन में उसे रुला दिया। हालांकि वह धीरे धीरे सैन्य जीवन के लिए अवत्या हो गई थी और रेजिमेंट में उनके करियर में उड़ान भरी। जब वह अधिकारी की परीक्षाओं में प्रथम स्थान पर रही और महिला रेजिमेंट में सेकंड इन कमांड बन गई। 1943 के अंत में रसम्मा और जानकी थेवर लगभग 500 भारतीय महिलाओं में से 2 किशोर भारतीय लड़कियां थीं, जिन्हें सिंगापुर के वाटरलू स्ट्रीट की झांसी में रेजिमेंटल मुख्यालय की रानी में भर्ती कराया गया था। यहाँ उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनेता की बेटी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन के प्रभार में रखा गया, जो युद्ध शुरू होने कुछ समय पहले ही सिंगापुर में बस गए थे, लेकिन दैनिक अभ्यास कठिन था। स्थानीय विशेष अधिकारी प्राप्त मध्यम वर्ग की दुनिया के विपरीत नहीं थी, जिसमें कई लड़कियां आदि थी। जानकी ने समझाया था, ये सब लड़कियां की झोपड़ी थी। तुम्हें पता है, कोई बिस्तर नहीं, कुछ भी नहीं। हमें सुबह बहुत जल्दी उठना है। जैसे ही गोंग जाता था, अपना आपको जागना होता था और आप 1000 लड़कियों को देखते थे सिविल स्नान घर के लिए दौड़ रहा है। सुबह बहुत ठंड है, स्नान करें, बाहर जाएं, शारीरिक प्रशिक्षण के लिए दौड़े। वह आधे घंटे तक चल रहा था। फिर हम वापस आए, फिर हमने अपना नाश्ता किया, फिर हमारी सेना का प्रशिक्षण शुरू किया। जानकी थेवर झांसी रेजिमेंट की रानी में दूसरे नंबर पर थी। ने वर्षोयूतन रंगून के बैंकॉक तक मैराथन पैदल यात्रा के बारे में लिखा, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना ने माना अधूरे जंगलों के माध्यम से 23 दिनों से अधिक की दूरी सबसे कठिन इलाका के अक्सर अंधा कर देना, अंधेरे आसान नदियों और नालों पर पार करना, पूरी तरह से भींगी हुई फटी हुई वर्दी में चलना और दुश्मन के विमानों की गिद्ध आंखों में नीचे फफोल पैरों पे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जानकी थेवर एक कल्याणकारी कार्यकर्ता के रूप में उभरी। वह माल्या में भारतीय कांग्रेस मेडिकल मिशन में शामिल हुई और पूरे देश में एवर स्टेट का दौरा किया। इस अनुभव से उन्हें भारतीय आबादी के भीतर किसी राजनीतिक संगठन की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया। 1946 में उन्होंने जॉन थीवी के मल भारतीय कांग्रेस की स्थापना में मदद की, जिसने थीवी को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में देखा। बाद में जीवन में वे मलेशियाई संसद की दीवान निगार की सेनेटर बनी। निमोनिया के कारण 9 मई 2014 में उनके घर में उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया देश के लिए और उनके बारे में कहीं बताया ही नहीं था। दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जय हिंद। कैडेट अभ्रनील। यस मैम। जय हिंद। आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करिए। यस मैम। जय हिंद। मैं कैडेट अभ्रनील सिंह फ्रॉम 55 यूपी BNNCC से हूँ। मेरा रेजिमेंटल नंबर UP 2021 SDA 461558 है। तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो आज़ादी हम लोगों को मिली है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का बलिदान था। तो आज मैं एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात करना चाहूँगा जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो अब्दुल जलील उन्हीं में से एक हैं। अब्दुल जलील का जन्म 15 जनवरी 1910 को एबरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। उनके पिता का नाम नजीर मोहम्मद था। अंडमान द्वीप समूह पर वे एक शिक्षक के तौर पर कार्य किया करते थे, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के वह सदस्य बने आगे जाकर और उन्होंने
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को राजनीतिक और वित्तीय सहायता देने के लिए काफी संघर्ष किया और अंडमान समूह पर जब जापानी कब्जा हुआ तो उन्हें अक्टूबर 1943 को अंग्रेजों के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और सेलुलर जेल में बंद रखा गया था। उनकी नजरबंदी के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया गया और आखिरकार 30 जनवरी 1944 को जापानी फायरिंग दस्ते द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उन्हें होम फायरिंग जोन में ही दफना दिया गया। तो यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे वीरों के बारे में हमें जानने का सौभाग्य मिला और हमें अपने वीरों को हमेशा इज्जत देनी चाहिए और उनकी इस थैंक यू वेरी मच। कैडेट प्रगत, आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं प्रगट शुक्ला 55 यूपी बटालियन एनसीसी पीएसआईटी कॉलेज। मैं आपके समक्ष एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनका नाम है दुर्गा भाई देशमुख। माननीय साथियों, हमें बचपन से ही कभी अपने इतिहास के बारे में नहीं बताया गया। हमें सदा ही वो चीजें बताई गई जो हमें शायद जानने लायक इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण था वो आज तक किसी ने ना हमें बताया और ना ही किसी किताब में इनके बारे में दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुर्गा भाई देशमुख भारत की एक महान वीरांगना और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। इनका जन्म 15 जुलाई 1909 के दिन आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी जिले के काकीनाडा नामक कस्बे में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके माता पिता बचपन से ही बड़े लाड प्यार से इनका पालन पोषण किया। उनका परिवार एक मध्यम वर्ग का परिवार था, तो इसी के कारण उनके जीवन बहुत सारी कठिनाइयां और परेशानियों से उनको गुजरना पड़ा। उन्हें पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, इसी कारण उनका बाल्यकाल से बहुत होशियार और बुद्धिमान, मतलब वो काफी बुद्धिमान थी, जिसके कारण वो हर वर्ष प्रथम आती थी अपनी परीक्षाओं में। और इनकी शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो दुर्गा भाई के बाल्यकाल के दिनों में बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजा जाता था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूर्व में शिक्षा का अधिकार महिलाओं को इतना नहीं था जितना इस समय है। तो पर दुर्गा बाई में पढ़ने की लगन थी। उन्होंने अपने पड़ोस के एक अध्यापक से हिंदी पढ़ना आरंभ किया। उन दिनों हिंदी का प्रचार बहुत राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था और हिंदी में इतनी योग्यता अर्जित कर ली कि 1923 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय ही खोल दिया। और गांधी जी से इन्होंने इतनी प्रेरणा मिली कि और उनका इतनी सराहना भी की गांधी जी ने, तथा इनको स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। और इसी श्रृंखला में उन्होंने जेल यात्रा भी एक वर्ष की सजा काटकर पुनः गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गई। और अब जेल की इस अवधि में दुर्गा बाई ने अपना अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी बढ़ा लिया। और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ दुर्गा बाई ने महिला वकील बाहर आने पर दुर्गा भाई ने मद्रास विश्वविद्यालय से नियमित अध्ययन आरंभ करके एमए की डिग्री प्राप्त कर ली व कानून की डिग्री भी प्राप्त कर ली, जिससे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और भी महत्वपूर्ण और भी योगदान कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और कुछ और एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूंगा कि दुर्गा भाई देशमुख जी बीमार रहने लगी थी अपने जीवन के अंतिम दिनों में और 71 साल की उम्र में 19 मई 1981 को उन्होंने अंतिम सांस ली। आज वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनका बलिदान और उनका जो साथ था हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, वह सदा हमारे साथ रहेगा। हम उनके इस अद्वितीय साहस के लिए बहुत सदा ही आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आशा करती हूँ इस पूरे कार्यक्रम के पश्चात आप सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अपने परिवारजनों को बतलाएंगे और अपने देश के प्रति
कर्तव्यों को भी निभाएंगे, देश को संजोए रखने में अपना योगदान देंगे। इतिहास को भुलाकर नहीं, बल्कि उससे सीखकर व उसको संजोकर आगे बढ़ें। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।